फोर्थ पेपर में अच्छा। आपके 4 यूनिट रहेंगे. फर्स्ट 2 यूनिट्स विल बी ड्रग्स एंड डाइज. ड्रग्स रहेंगे फर्स्ट यूनिट, ड्रग्स एंड इट्स डेवलपमेंट. थर्ड यूनिट रहेगा बायोजेनेसिस. फोर्थ यूनिट रहेगा ग्रीन केमिस्ट्री. फर्स्ट 2 यूनिट अंजलि मैडम लेंगे आपके, थर्ड यूनिट मैं लूंगा और फोर्थ यूनिट चेतन सर और बेनजीर मैडम लेंगे. So this will be how 4 units will be completed for paper 4. So इसमें अभी थर्ड यूनिट हम आज से स्टार्ट करेंगे. थर्ड यूनिट में आपके 4 पोर्शंस हैं, 3.1, 2, 3 and 4. तो फर्स्ट इसका जो सब यूनिट रहेगा that will deal with basic ideas about what is biogenesis and biosynthesis of all the natural products. Then second unit will be, second, third and fourth will be dealing with different aspects of biosynthesis, that is acetate pathway, shikimic acid pathway and mevalonate pathway. So these will be our portions for this particular unit. देखेंगे आज 3.1, that is primary and secondary metabolites and the building blocks and general pathway for amino acid biosynthesis. Our portion for today is biogenesis and biosynthesis of natural products. So what is biosynthesis and what are natural products is the first thing that we need to we need to learn first. इसमें क्या होता है कि जब जो भी living cells होते हैं या living organisms होते हैं, these living organisms have a particular way of synthesizing and degrading certain type of compounds. Like for example, we have proteins in our body, then we have nucleic acids in our body. Each of the cells will have these proteins, nucleic acids. Then we have carbohydrates and we also have lipids. These are basic 4 things which are present in almost all the living organisms. Their variations may be because of their structure may be variable, or maybe the type of that particular compound will be different. But proteins हर organism में रहते हैं, nucleic acids भी हर organism में रहते हैं, carbohydrates and lipids are also present in each and every organism. So these 4 kinds of compound are present in each and every organism. और इन चारों का जो synthesis होता है, the way they are synthesized, it is almost same in each of the organisms. Like if you are dealing with say viruses or very simple molecules like virus, जो आजकल बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है, डिफिकल्ट चल रहा है, इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो हम आराम से लेक्चर हॉल में बैठ करके लेक्चर्स लेंगे. So this virus or bacteria or complex molecules like human beings or elephants or any other mammals. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये चारों मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस एज वेल एज इट्स डिग्रेडेशन, सिंथेसिस या उसका काम होने के बाद में उसका डिग्रेड करके उसे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो या फिर उसे थ्रो आउट करो. तो ये सारा जो चीजें होता है वो सारी यहाँ पे सिमिलर वेज में होती है. यस सोनाली, एनी प्रॉब्लम? Sonali, you have raised hand. Is there any problem? नहीं हो तो हैंड रेज का जो बटन है उसमें वापस से एक बार क्लिक कर दो तो हैंड डाउन हो जाएगा, नहीं तो हाथ दुखने लगेगा. बराबर ना? So where were we? These 4 molecules, proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids, all these 4 molecules have similar type of synthesis and similar type of degradation methods. They vary it very little, minor changes होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन मोर और लेस इनका जो टाइप होता है, सिंथेसिस का टाइप होता है या सिंथेसिस के मैकेनिज्म्स या फिर उनके डिग्रेडेशन के मैकेनिज्म
काम खत्म होने के बाद उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो उनका तरीका होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का होता है। इसलिए एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर लिया तो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में भी सेम टू सेम रहेगा, वही होता है चीजें। तो इनकी जो स्टडी होती है, दिस स्टडी वी कॉल इट एज ए बायोकेमिस्ट्री। वी डील दिस स्टडी इन टॉपिक or branch of biology as a biochemistry, branch of biology and branch of chemistry as a biochemistry. Under biochemistry head we study all these four types of molecules, its synthesis as well as its degradation. That is why these proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids makes part of all our biochemistry books. बायोकेमिस्ट्री के बुक्स है, लेनिंजर है या व्हाइट एंड व्हाइट है या फिर आपके बाकी के सारे जो भी है वो सारे भी वहां पर उसी टाइप में बायोकेमिस्ट्री के हेड में जो भी रहेगा वो इन्हीं चार मॉलिक्यूल्स के आजू बाजू में रहेगा। कोई बुक्स फिर विटामिन को भी उसमें इंक्लूड करता है, कोई नहीं करता है, बट एक्चुअली विटामिन आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सो दे विल बी कमिंग अंडर द नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड दे विल नॉट बी कमिंग अंडर बायोकेमिस्ट्री। These four types of molecules are basic building blocks or basic molecules of the life. This we call it as a basic molecules for life. For to have a life, we require this molecule. Other than this molecule, cells or the organism contains lots of different types of molecules. यहाँ पे ये जो चारों मॉलिक्यूल्स हैं, ये चारों टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये चारों टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स होते हैं हर किसी में। इसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। We are different from chimpanzees, although we have come from chimpanzees, but we are different from chimpanzees. Similarly, chimpanzees are different from neem tree, और neem tree is different from elephants. सभी अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सब में प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स तो सेम रहते हैं। इनके बनाने के तरीके भी इन सभी में सेम होते हैं और उनको यूज करने का तरीका भी इन सब में सेम ही होता है। फिर इसमें डिफरेंस क्या आता है कि नीम ट्री भी होता है और वो मैंगोज कभी नहीं देता है, जबकि मैंगो ट्री कभी भी आलमंड के फ्रूट्स नहीं देता है या फिर कुछ और दूसरी चीजें नहीं देता है, वो सिर्फ मैंगोज ही देता है। ऐसा होना चाहिए ना कि किसी एक पेड़ को लगा दो और उसको जो चाहिए वो वहां से मांग लो, तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। फिर हमें जो चाहिए वो मिल जाता था वहां से, एक ही पेड़ में से सब कुछ मिल जाता था, बढ़िया रहता था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे कुछ अलग चीजें होती है। मैंगो ट्रीज में जो होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नीम ट्री में नहीं होती है, या फिर वही कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स में नहीं होती है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में भी नहीं होती है, ह्यूमन बीइंग्स में। तो यहाँ पे कुछ सटल चेंजेस होते हैं, कुछ बड़े चेंजेस होते हैं, ताकि एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में या एक किंगडम से दूसरे किंगडम में वो चेंजेस हमको इजीली दिखाई देते हैं। सिमिलरली शुभम में और आनंद में दोनों में डिफरेंस है। यह दीप भी अलग दिखता है शुभम से, बराबर ना? यस और नो? Yes, sir. दीप एंड शुभम आर डिफरेंट और सेम? Different. डिफरेंट है, क्यों? दोनों तो दीप लंबा है, दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स है ना? हाँ यस सर। फिर डिफरेंस क्या आया? आपका डीएनए भी सेम होता है दोनों का, मीन्स ऑलमोस्ट सेम होता है डीएनए भी, उसमें भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और प्रोटीन्स भी आप सिमिलर टाइप के सिंथेसाइज करते हो अपने बॉडी में, लिपिड्स भी सिमिलर टाइप के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी सिमिलर टाइप के होते हैं। क्वांटिटीज अलग अलग होती है, एक अगर हमारे मेरे जैसा होगा तो उसमें लिपिड्स फैट्स थोड़े ज्यादा होंगे, दीप में थोड़े से कम होंगे, वो अलग चीज है, लेकिन क्वांटिटीज में अलग होगा, बाकी क्वालिटीज में तो सब में सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप। फिर डिफरेंस क्या आता है कि एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। हमारे लिए सारी भेड़ बकरियां सिमिलर टाइप की होती हैं। शिप्स का अगर एक झुंड पूरा दिया जाए तो वी विल बी नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश ईच ऑफ देम सेपरेटली, लेकिन जो शेफर्ड होता है वहां पर, जो भेड़ बकरियां चराने वाला होता है, उसको पता होता है कि कौन सी भेड़ उसकी है और कौन सी दूसरे वाले की है।
वो पहचानता है उन सब में, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, हर किसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। नीम ट्रीज भी अलग अलग, नीम ट्रीज अलग अलग टाइप के होते हैं। दो नीम ट्रीज अगर आपने एक साथ लगाए हो, एक ही दिन लगाए हो, और दोनों को सेम टाइप का आपने फर्टिलाइजर्स या पानी वगैरह सब कुछ सेम कंडीशन दिए हो, फिर भी वो दोनों अलग अलग होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, आप पहचान सकते हो कि कौन सा क्या है। मैंगो ट्रीज में भी अगर आप फार्मर्स होंगे तो दो मैंगो ट्रीज अलग अलग होंगे, उन दोनों के मैंगोज में थोड़ा बहुत सटल चेंजेस रहेगा। अगर आप एकदम एक्सपर्ट हो तो एक ट्री के मैंगोज का टेस्ट और दूसरे ट्री के मैंगोज के टेस्ट से फर्क पड़ेगा, होता है ना? यस सर। हाँ, बात नहीं करते हो आप लोग, फिर गड़बड़ होती है। हाँ, क्लास में रहते तो फिर तो आपको मार पीट के भी बात करवा देते थे, लेकिन यहाँ फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा ही लैपटॉप जाएगा मारने पीटने लगेंगे तो। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो चेंजेस होता ही है। व्हाई इज दिस चेंज हैपनिंग? दैट इज व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर दिस टॉपिक, दिस यूनिट। कि कैरेक्टराइज जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट बनाती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों आती है, हर ऑर्गेनिजम्स में वो क्यों आती है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, दूसरे में नहीं दिखते। सेम स्पीशीज के होंगे, दो ह्यूमन बींग्स होंगे, दो ह्यूमन बींग्स में भी अंदर केमिकल कंटेंट अलग अलग होगा, थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस होगा केमिकल कंटेंट्स में, जिसकी वजह से कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्स दो लोगों का अलग अलग आएगा। एक पर्टिकुलर चीज में ही आपका रिस्पॉन्स अलग अलग होगा, तो भी आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आते हैं उस पर्टिकुलर केमिकल्स जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके सेल्स के अंदर। सपोज कि पर्सन ए एंड पर्सन बी बोथ आर ट्रैवलिंग, आप खड़े हो कहीं पर या कहीं जा रहे हो, दो लोग जा रहे हैं और उसमें सामने से सांप अगर आ गया तो क्या करोगे? हो सकता है कि एक उसको सामना करे उसका, या फिर उसको दूर भगाए और दूसरा भाग जाए वहां से। बहुत सी बार ऐसा होता भी है कि एक डर के भाग जाएगा और दूसरा वाला है कि उसको थोड़ा सा देखेगा और फिर बाद में सांप को जाने देगा और फिर अपना आगे बढ़ जाएगा। So the responses for two things for same situation by two different persons will be different, and that difference of responses is characterized by the chemical content that is present in each of our individuals. एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में ये केमिकल का कंटेंट होता है वो काफी डिफरेंस होता है, इसलिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत डिफरेंस आता है। एक ही स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स लेंगे तो उनमें ये जो केमिकल कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़े से चेंजेस होते हैं, इसलिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा चेंजेस होता है। लेकिन अगर एक को दूसरे से देखोगे, बंदर को इंसान से देखोगे, तो उन दोनों में काफी सारा डिफरेंसेस आता है, बिकॉज उनके केमिकल कंटेंट्स में बहुत डिफरेंस होता है। सो दिस इज व्हाट इज मेकिंग दैट डिफरेंसेस। दो ये जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम केमिकल्स नहीं होते हैं। So those chemicals we call it as secondary metabolites. Those chemicals we call as secondary metabolites. These are the chemicals which are present only in particular individuals or in a particular species. They are not present in all organisms throughout the life. Throughout all living organisms ये नहीं present होते हैं, जबकि ये प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ये चारों चीजें हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और इनके जो पाथवेज होते हैं, इन पाथवेज को हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलिज्म और प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज। इनका सिंथेसिस या इनका डिग्रेडेशन होता है वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है या फिर प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू होता है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशीज को कैरेक्टराइज करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिंथेसाइज करने के जो पाथवेज होते हैं, दैट इज सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म और सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज। ये चीजें हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग होती है,
लेकिन इसमें बहुत सारे स्पीशीज में अभी सेम प्लांट्स में बहुत सारा केमिकल सेम केमिकल्स टाइप का होता है। सो उनके इसमें वो जो केमिकल्स होते हैं उनके सिंथेसिस सेम टाइप के होते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है कि कुछ अलग टाइप का होता है, तो वहां पर हमारा वैसा ही रहेगा। सो उसमें जो होता है सिंथेसिस एक सिमिलर टाइप से होता है। सो वी विल बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिट नॉट डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनमें वो क्यों आता है या कैसे आता है, उनका सिंथेसिस कैसे होता है, ये हम नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ जो जनरल पाथवेज है जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम रहते हैं, वो हम वहाँ यहाँ पर देखेंगे। ज्यादा हम नहीं देखेंगे, थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स ही देखेंगे, लेकिन जो जनरली जो पाथवेज फॉलो किए जाते हैं उन पाथवेज को हम इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ेंगे कि कैसे इन केमिकल्स को सिंथेसाइज किया जाता है और उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। ये समझ में आया कि यूनिट में क्या पढ़ना है? हाँ जी, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे यस जो सर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोज का कलर पहले पिंक होता था, अभी अलग अलग कलर्स भी आते हैं। सो रोज का वो जो कलर होता है रोज का, वो अपने लिली के फ्लावर से अलग होता है या गेंडू के फ्लावर से अलग होता है, उनका अपीयरेंस भी अलग होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन रोज विच आर नॉट प्रेजेंट इन lilies or which are not present in gender. So these are subtle changes. They may be, these chemicals may be responsible for giving some color to a particular organism or a particular part of the organism, or flowers का जो attractiveness है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि pollen grains easily migrate कर सके, insects को attract कर सके, and that can be done with that. सो ये होता है वहाँ पे मेन उसका मोटिव। और दूसरा मोटिव होता है कि डिफेंस के लिए भी ये केमिकल्स यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक्स में वेनम होते हैं, हर स्नेक स्पीशीज में अलग अलग टाइप के वेनम होते हैं। वो वेनम जो स्नेक में जो जहर होता है वो वेनम हमेशा अलग अलग टाइप का होता है। ये जो केमिकल्स होते हैं इंटर केमिकल का सिंथेसिस भी अलग होगा, उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स भी अलग होंगे, तो ये डिफेंस के लिए काम में आते हैं। वैसे ही ऑक्टोपस में अगर आपने देखा होगा तो वो इंक छोड़ता है, एक टाइप का इंक टाइप का एक मटेरियल छोड़ता है, दैट इज जस्ट टू give a certain color to that atmosphere so that octopus can run away from there. So it is just for the defense of that octopus that it is using this particular chemical. वैसे ही बाकी सारे बाकी वेजिटेरियन स्पीशीज के पास भी अलग होता है। यस,